there is a special uh, resolution that is getting passed in the Indian Parliament on the gaming ecosystem. It's going to be difficult for some of the companies, but it's going to be good for the country and how we are going to move forward. As you all know, that we are all talking about our careers, we are talking about how the system actually that is created the complete communication pattern in India and overseas. Your roles are going to be very prime and very important. And when I say that your roles are going to be very important, there is a reason for that. Because there was an era when there were wars which were fought on the boundaries of the seas and the boundaries of the countries. And there were wars which were formed, which were fought, which we called the World War I, World War II. But today's wars are not fought. And you don't need to have a boundary with a country to fight a war. Right now we have a perception war. We have a communication war. We had in 2020 a biological war, which was COVID. And then we have a war which is a cyber war as well. And there are many other kinds of wars. The whole perception of war has changed. And as a student of journalism, as a student of mass communication, as a student of animation, as a student of overall storytelling as a business, is very important to understand that what are we actually carrying on the story that we tell to the world every single day. As we know that the storytelling is very important and integral part of everyday life. Every single person in this world tells a story, and what that means is what I want to actually elaborate upon today. The topic that is given to me is all about AI. And as you all know, that the AI is disrupting our life every single day. In a day, we have at least 14 to 15 different type of news which talks about the AI impact in our life, and which also talks about how it's going to take away the jobs. And I want to tell you that all these things that have been talked about is a building narrative, and it's a communication that has been forced upon us to believe that people with existing job profiles might lose their jobs. But it doesn't ever say that what are the new job profiles that are going to emerge in the era that AI is actually going to rule the world. And as I tell you, that at one point in time when I was in school, we were taken to Indian Petrochemical Limited in Baroda. I studied in Nagpur, and we were told by a scientist in Indian Petrochemical that we have invented plastic, which is an artificial wood, and it is going to replace even the metals in many cases. And what plastic is going to do is going to bring in a revolution. 40, 50 years later, we realized that the plastic that was invented and was really celebrated at one point in time, today that plastic is a huge problem to the world. The same thing happened when in 1999-2000, when actually we were in the transition, there was a dot-com era that came in, and we had a revolution of a dot-com that came in along with that, and the complete web 0.1 started at that point in time. And that time when the complete web operation started, people thought that all the kirana shops, the shoe shops and all other shops for clothing are going to close down. People are going to only come and order online. And that was something that is going to change the world. And we realized even today after 25, 26 years that everything coexists. Because the e-commerce has taken off, but the market has also expanded. At the same time, the kirana shop also exists, the shoe shop exists, and everything exists as it is. The business grew to a multiple fold because the consumerism actually had a different paradigm
shift because of the communication pattern. And that's why the communication is very important for all of us. When we were kids, we used to read books, we used to read newspapers. Then came an era that we actually started reading newspapers on the laptop. We were starting to have newspapers or any form of information read onto the mobile phone subsequently. Today, you don't want to read anymore. You want to watch videos and learn things from there. And everything has actually turned into a video. And according to me, in the next 5 to 7 years, there are 3 V's which are going to actually rule the world. The first V is going to be the video. The second V is going to be vernacular. People will get the content in the language that they want to watch. And the third V is going to be the voice. And the voice is going to be the most popular form of communication. And that's where we are going to see how AI can interrupt many of these forms of communication. As we move forward, I wanted to tell you that when you are telling stories, what is the most important thing in the part of the storytelling? The storytelling actually is not so complex. It sounds like it's complex. As I tell you the small stories, as we move forward, आप सबको स्टोरी सुनना है? 10,000 years ago, जब हम ये देखते थे कि हम लोग जो ह्यूमन रेस है, वो और एनिमल लोग जो थे, both of us were existing at the same pace. The animals were living in the caves, we were also living in the cave, and we were practically nowhere. Where were we? We were nowhere. But there was something in the human body, in the brain that the human bodies had, and that brain actually worked, and it had a particular skill that is imparted, which was a communication skill and a thinking ability, and that led to a complete different paradigm design, which is called design thinking, and because of which, from nowhere, the human race reached somewhere. Where they reached from nowhere? Somewhere. From nowhere to? So when it reached somewhere, what was it doing? They started wearing clothes, they started cooking food, they started living in huts, and it actually became a human race. And when they actually started doing all this, they actually wanted to invent something which is very important for them, and a wheel was invented. Wheel is, you all understand wheel? So wheel is a man-made thing, and it was invented by human beings. And when the wheel was invented, it actually also invented a wing, which is the aircraft wing that you all know. And then came that from nowhere, they went somewhere. From somewhere, they wanted to be everywhere. Where they wanted to be? So people started going everywhere in their life. They wanted to have breakfast in one city, lunch in another city, dinner in another city. And that's exactly what I did yesterday. I was in Pune for breakfast. I was in Mumbai for lunch. I was in Bhopal for dinner. The thing is that we wanted to be everywhere. And as the complete communication pattern and everything was moving forward from nowhere to somewhere to, we all realized that we are elsewhere. You know where? Like I know many guys, they are watching WhatsApp, they are actually watching videos. Some guys, they are actually communicating with their friends on WhatsApp. And they were all, your human bodies are here, but we are. So from nowhere to, nowhere to, somewhere to, everywhere to. The job of storytelling is to bring you now here. Where? Now? From nowhere to? No, nowhere to now here is the story. You need to understand this story very carefully. From nowhere to? Correct. So if you are able to bring people from nowhere to now here, you have told a great story in life. And as I tell you that this story is going to have a very impactful, situation when the story is well researched. And if you don't have a well researched story, then it's not going to carry an impact. If you want to get them now here,
You don't have to be expert in artificial intelligence. You have to be expert in emotional intelligence. What do you have to be expert in? Because you all watch Netflix. Do you? Do you watch other forms of OTT? So what happens that when the new series comes, अभी Ops 2 आया था ना अभी? आया था कि नहीं आया था? अभी महारानी 4 आने वाला है, वो भी मध्य प्रदेश में शूट हो रहा है. तो क्या होता है कि जब हमारे पास में नई सीरीज आती है, तो अगर 10 एपिसोड्स भी रहे एक एक घंटे के, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक ही दिन में सब एपिसोड देखना चाहते कि नहीं चाहते? या तो अगर हम लोग को एक दिन में नहीं देख पाए तो हम 2 दिन के अंदर में पूरे एपिसोड ख़त्म कर देते हैं. उसका मतलब क्या होता है कि जो स्टोरी टेलर है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. क्या है? बिकॉज एवरी स्टोरी टेलर, एज सुन एज यू स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी or a show, they bind you with their emotional intelligence, and they know that you have to be actually not willing to get up unless and until the story ends, and that's the power of emotional intelligence. तो आप मेरे को बताइए कि AI बड़ा हुआ कि EI बड़ा हुआ? So if you understand the emotional intelligence, then you will not have a fear of AI. Are you getting my point? The AI by itself cannot stand in this world because it is not a vertical in which one can actually make a career. AI has to be used very effectively in your form of storytelling every single day. And what AI can do today, it's going to rewrite itself every single day. What cannot be done today will be done tomorrow. What cannot be done tomorrow will be done day after. So AI is going to ever evolve. But as I told you, when the internet came in, people thought that the shops will close down. It has not happened. And that's why people have to adopt AI into everyday working and make sure that you are able to look at AI in the right form. अभी किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, आपके स्टूडेंट्स में से थे, बड़े अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट थे, वो फर्स्ट ईयर के थे, और मैं आई वॉज रियली अमेज्ड. आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट द वे दे आस्क्ड मी द क्वेश्चंस as to how do I use AI in my animation. The thing is that I use AI in my animation today, but I don't use it fully. अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि मैं AI में जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनाऊंगा और इधर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो मेरी फिल्म बन जाएगी. लेकिन वो जो फिल्म आएगी उसमें एस्थेटिक्स नहीं रहेंगे, उसमें आपका कैमरा एंगल्स जो चाहिए वो पूरे जैसे चाहिए वैसे नहीं होंगे, आपका फोकस डिफोकस ठीक नहीं होगा, आपका सब कैरेक्टर्स जो है वो ऐसा तेल लगाया हुआ कैरेक्टर लगेगा. क्या आप ऐसा कैरेक्टर दिखाना चाहेंगे? आपको 2D दिखाना है, 3D दिखाना है? अब ये सब चीज़ें भी सॉल्व होने वाली है, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगी. लेकिन एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टोरी के डिटेल्स में जाए, हम टोटल रिसर्च करें. जब मैंने लिटिल कृष्णा बनाया था तो मैंने सबसे पहले जब एनिमेशन में काम शुरू किया तो मैंने पहले डिज्नी का काम किया, फिर ड्रीमवर्क्स का काम किया, साथ में सोनी का काम किया, फिर वार्नर ब्रदर का काम किया, और वो सबको कन्विंस करते करते 4 साल लग गए कि आप हिंदुस्तान में काम भेज सकते हो. और 95 से 99 तक के मैं घूमते रहा लेकिन काम नहीं आता था. फिर हमको काम आया, 2005 तक के हमने वो काम किया. लेकिन 2005 में मैंने सोचा कि हम तो सब काम जो है वो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए कर रहे हैं या जापानीज़ कंपनीज़ के लिए कर रहे हैं, तो हम हमारा कंटेंट कब बनाएंगे? इसलिए मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली और वहाँ पे मैंने लिटिल कृष्णा का काम शुरू किया. तो आपको बता दूं कि जब मैंने काम शुरू किया तो वो टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मैंने किस कैरेक्टर पे काम करना चाहिए. तो मैं अंकल पाई करके एक थे, आपने नाम सुना है कि मालूम नहीं, आपने अमर चित्रकथा का नाम सुना है? तो अंकल पाई जो थे उन्होंने अमर चित्रकथा बनाई थी. मैं उनके पास गया और उनको पूछा कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला कॉमिक बुक कौन सा है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला कॉमिक बुक कृष्णा है. और मैंने बोला दूसरा? तो बोला दूसरा गांधी है, और तीसरा हनुमान है.
तो जब मेरे को ये फिगर्स मिले और फिर मैंने सोचा कि इसका सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होगा, तो मैं तब बैंगलोर में था। तो मैं बैंगलोर इस्कॉन में गया, स्वामी जी को मिला। मैं बोला, स्वामी जी हम लोग एनिमेशन करेंगे कृष्णा के ऊपर। तो स्वामी जी ने मेरे को बोला कि मैं तो ऑलरेडी महाभारत कुछ हॉलीवुड के स्टार्स के साथ कर रहा हूँ। तो मैं स्वामी जी के साथ लॉस एंजलिस गया, वो सब हॉलीवुड स्टार्स को मिला। तो फिर मैंने स्वामी जी को बोला कि भाई अगर हम महाभारत करेंगे तो सिर्फ सीनियर लोग देखेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो क्या देखेंगे। और जो कृष्णा की लीला है वो तो जब वो वृंदावन में और वहाँ पे मथुरा में थे तो वो टाइम की स्टोरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मेरे को 1.5 साल लगा स्वामी जी को कन्विंस करने के लिए कि हम लिटिल कृष्णा करते हैं। और लिटिल कृष्णा का काम जब शुरू किया तो हमको समझ में आया कि हमको हर चीज़ हाथ से ड्रॉ करनी थी। और हमको ये बताया गया था कि कृष्णा का जो डिस्क्रिप्शन था वो करीबन 60 से 70 टाइप का डिस्क्रिप्शन था कि कृष्णा बहुत सुंदर थे, वो ब्लू कलर के थे, वो ज्वेलरी पहनते थे, वो धोती पहनते थे। और एनिमेशन तब तक हम लोगों ने जो कार्टून कैरेक्टर पे एनिमेशन किया था तो हर कार्टून कैरेक्टर को 3 ही उंगलियां होती थी क्योंकि वो सिंपल होता है एनिमेशन करने में। लेकिन कृष्णा में तो 5 उंगलियां थी और 5 उंगलियां दिखानी थी। उनके बाल बड़े सुंदर थे तो बाल भी दिखाने थे। और वो हर एपिसोड में नए डीमन के साथ उनका फाइट होता था। अब वो डीमन चुनना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब जब आप बच्चों के लिए सीरियल बनाते हैं तो काफ़ी सारा ग्रामर और काफ़ी सारे रूल्स रहते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उनको सीक्वल समझ में नहीं आता है कि आपने एक एपिसोड छोड़ दिया उसके आगे दूसरा एपिसोड शुरू किया, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे जब जो भी 6 to 9, 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको उनका सेम कैरेक्टर देखना रोज़ पसंद करते हैं। वो उनको ऐसा नहीं कि आज बच्चा दिखा दिया कृष्णा, कल बड़ा दिखा दिया, फिर और बड़ा दिखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उनको रोज़ एक ही कैरेक्टर डिज़ाइन दिखना चाहिए तो वो वापस आते हैं अपने शो पे। तीसरी बात ये होती है कि उनको वो शो समझने के लिए और कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कंस कौन ये पहले से मालूम होगा तो ही वो स्टोरी समझ पाएंगे, ऐसा चीज़ नहीं हो सकता। लैंग्वेज तुम्हारी सिंपल होनी चाहिए और उनके जो दोस्त है वो उनके साथ रहने चाहिए ताकि उनको सबको साथ में देखने में मज़ा आए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो और बहुत सारे फिल्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मेरे को मैडम ने बताया कि एनिमेशन के भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हमें कैरेक्टर 6 से 9 साल के बच्चों के लिए मैं अगर शो कर रहा हूँ तो अगर उनकी हाइट इतनी है तो मेरा हर डिज़ाइन में, हर स्टोरी बोर्ड में कैमरा इधर होता है। जब मेरे शो में मैं बड़े लोगों के लिए शो बनाता हूँ, एडल्ट्स के लिए, तब मैं अगर कार की तरफ चल के जाऊँगा तो मेरे को कार का रूफ दिखता है, लेकिन अगर मैं वो बच्चे के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे को हैंडल दिखना चाहिए। तो आपको कैमरा बच्चों के आँख जहाँ पे है वहाँ पे आपको कैमरा प्लेस करके पूरी स्टोरी बोर्ड करनी पड़ती है। तो ये सब रूल्स है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कृष्ण लीला में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसका रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सभी चीज़ आउटडोर में होती थी। तो आउटडोर में जब होती थी तो हमको बताया गया था कि कृष्णा को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है और कृष्णा का कलर ब्लू है, और जब आउटडोर में आप काम करोगे तो आपका स्काई भी ब्लू है और पानी भी ब्लू है, तो आप कृष्णा को कैसा स्टैंड आउट कराओगे, तो वो ब्लू कलर भी स्टैंड आउट होना चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे कि वो एआई कर देगा, तो वो एआई नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट है उनको जो कलर थियरी सिखाई गई है वो फाइन आर्ट से आते हैं, उनके पास हम बैठ के जब आप कलर कीज बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको समझ में आता है कि आपके स्टोरी की डेप्थ क्या है, आपका रिसर्च किस तरफ जा रहा है, और कृष्णा का ब्लू कलर कैसा रहेगा, पानी का ब्लू कलर कैसा रहेगा और स्काई का ब्लू कलर कैसा रहेगा। इसी के साथ साथ जब कृष्णा का काम हमने शुरू किया था तो हिंदुस्तान में विजुअल इफेक्ट शुरू नहीं हुआ था, 2004-05 की बात है। तो हम लोगों के पास में पानी हैंडल करने वाले एक्सपर्ट नहीं थे, डस्ट हैंडल करने वाले एक्सपर्ट नहीं थे, क्रीचर्स यानी जो टाइगर, लायन, काउज और हॉर्स, डीमन भी आते थे एपिसोड में, 1-2 एपिसोड में नाग भी था, तो ये सब स्पेशलिस्ट लोग नहीं थे। तो मैंने यूएस जाके वहाँ से
स्पाइडरमैन के डायरेक्टर को विथ फैमिली बेंगलोर शिफ्ट किया था 3 साल के लिए, ताकि उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को सब कुछ कैसा करते हैं वो सिखाया। और आज हिंदुस्तान इस मकाम पे है कि वर्ल्ड का कोई भी फिल्म आज ले लीजिए, कोई भी विजुअल इफेक्ट्स फिल्म लीजिए या कोई भी एनिमेशन फिल्म ले लीजिए, तो उसमें कम से कम 20 to 30% लोग जो हिंदुस्तान से हैं, जो आप जैसे स्टूडेंट थे, वो आज काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 2 डिकेड्स में हुआ है, यानी 20 साल के अंदर हुआ है। और आज ये स्थिति है कि अगर आपका हिंदुस्तान में स्टूडियो नहीं है तो आपके फिल्म की वायबिलिटी नहीं बन सकती है। ये समझ रहे हैं आप कि आज आपको अगर कोई कंटेंट बनाना है, आप भले ही अमेरिकन स्टूडियो हो या कैनेडियन स्टूडियो हो या फ्रेंच स्टूडियो हो या जर्मन स्टूडियो हो या यूके का स्टूडियो हो या इवन जापान का स्टूडियो हो, आपको हिंदुस्तान में काम देना ही पड़ता है, क्योंकि जो कॉस्ट आर्बिट्रेशन और क्वालिटी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर में ही है। और इसलिए आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ये सब की जो शिक्षा ले रहे हो, ये सब आपके काम में आने वाली है, क्योंकि आज हम डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी में सक्रिय हैं। आज कोई भी चीज़ की आप जानकारी लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपका मोबाइल लेते हो और आप सर्च इंजन में जाते हो और उसको सर्च करते हो। उसमें लिखा हुआ आता है तो वो आप स्क्रॉल कर देते हो, वीडियो आता है तो पहले देखते हो ताकि आप उसको समझ पाओ। तो ये जो डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम बनी है और डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी बनी है, इसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो रोल है वो सबसे ऊपर है। और हम जब स्कूल में थे, तो आप भी जब स्कूल में थे, तो आपको क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन और स्पोर्ट्स के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाते थे। और अगर आप वो करना भी चाहते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ कुछ कर लो, उसके बाद ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लेना। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत करके ये करियर में आए, इसके लिए मैं आपका दाद देता हूँ। और ये जो करियर है, ये करियर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये एक करियर, एकमात्र करियर है जिसमें आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो वो आपकी जनता देखती है और वो जनता उसको अच्छा बुरा जो भी कहना है वो कहती है, और उससे आप सीख के नेक्स्ट कंटेंट बना सकते हो। और आपका कंटेंट बनाने का जो जर्नी है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आप धीरे धीरे आपका रिसर्च और आपका जो आउटपुट है उसके ऊपर भी ध्यान देते हो। लेकिन ये सब करते हुए हम लोग को ये देखना है कि टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा होता है। आज आप कोई भी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को छोड़ के काम नहीं कर सकते हो, भले ही आप प्रिंट में हो या आप कॉमिक बुक बना रहे हो या आप स्टोरी लिख रहे हो या आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो या आप टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हो। हर जगह टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, आपको लीनियर एडिटिंग करना पड़ता है, आपको ऑन द फ्लाई इफ़ेक्ट्स डालने पड़ते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके डोर पे नॉक करते रहती है कि आज मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आपको चूज़ करना है कि आपकी स्टोरी पावरफुल बनाने के लिए आपको जो बजट दिया गया है वो बजट में आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे और किस टाइप की आपकी स्टोरी बताओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं सब कुछ टेक्नोलॉजी पे छोड़ देता हूँ, तो आपकी स्टोरी जो है वो चलेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं होगा। इसीलिए आपको इस पे ध्यान देने का है कि आपको इमर्जिंग इंटेलिजेंस जो चीज़ है ये क्या होती है, क्योंकि इमर्जिंग इंटेलिजेंस के ऊपर लोग आज बात कर नहीं रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आज लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो जब बात करते हैं तो उनकी बात करने की जो स्टाइल है वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और हर चीज़ आज आपके पास में सुबह इनॉग्रल में आए थे कुमार विश्वास जी, उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टडी है साइकोलॉजी की वो बहुत तगड़ी है, सब्जेक्ट मैटर पे बहुत स्टडी है, तो रिसर्च भी है उनका। और उसके साथ में उनका जो नैरेटिव है वो समझते हैं कि आज के ऑडियंस को क्या चाहिए
और इसीलिए उनका जो वक्तव्य होता है वो उस तरीके से एक प्रोग्राम्ड होता है। और वो करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का जोर तो लेना पड़ता है फॉर डिलीवरी, लेकिन हर बार टेक्नोलॉजी काम में नहीं आती है। मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगा। एआई फिल्म को लोगों को लगने लग गया है कि मैं आज प्रॉम्प्ट करूंगा और जो फिल्म आएगी वो एआई करके मैं डाल दूंगा। यूट्यूब में तो कुछ भी चलता है, फेसबुक पे कुछ भी चलता है, इंस्टा पे कुछ भी डाल दूंगा चलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। आपको अगर विख्यात स्टोरी टेलर बनना है या विख्यात डायरेक्टर बनना है या विख्यात एनिमेशन प्रोफेशनल बनना है, तो आपको एस्थेटिक्स यानी उसकी रूपरेखा कैसी है, उसमें प्रपोर्शंस कैसे हैं, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी है, उसका कलर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये सब के ऊपर में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हमारा बिजनेस है, अब बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मैं जिसको बोलता हूँ, मैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स या जर्नलिज्म ऐसा इसमें विभाजित कभी भी नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ कि वी हैव ऑल जॉइंड द बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। और ये बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग है, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्कूल में हैं तो हमारे पास में जो ग्रामर ऑफ स्टोरी टेलिंग है इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। हमको जो आइडिएशन टू स्क्रिप्ट टू स्क्रीन जिसको बोलते हैं, ये चीज़ों में क्या क्या चीज़ें होती है और इससे किस तरीके से हम हमारी स्टोरी बता सकते हैं, ये इसके ऊपर में हमारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हरदम इसको मेडिकल के साथ कंपेयर करता हूँ। मेरे को बताइए आप कि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके भाई बहन डॉक्टर बन रहे होंगे, है किसी के? तो आपको मालूम है वो कितने दिन स्कूल जाते हैं, यानी 12th के बाद कितने साल में MBBS करते हैं? 5 साल में। उसके बाद उनको कंपलसरी 2 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, मालूम है आपको? कितने साल हो गए? उसके बाद अगर उनको हार्ट सर्जन बनना है तो कितने साल लगेंगे? 2 साल और लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ठीक है 3 साल लगेंगे। तो कितने हो गए? कितने हो गए? आपकी मैथ्स टीचर अच्छी थी। तो उनको 10 साल लगेंगे। और 10 साल अगर वो लगाने के बाद में ओपन हार्ट सर्जन बन जाते हैं और वो आके आपको बोलते हैं कि मैं आपके हार्ट पे ऑपरेशन करूंगा, तो आप अलाउ करेंगे? करोगे? नहीं करोगे ना। आप बोलोगे जाके एक्सपर्ट के साथ में 500,000 ऑपरेशन करके आना, फिर मेरे हार्ट को हाथ लगाना। समझ में आया? तो वो क्या करते हैं कि जब MBBS करते हैं तो वो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी और अंदर की हर चीज़ को जानते हैं। और इसीलिए आपको अगर फिल्म मेकिंग करना है तो फिल्म का प्रोसेस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वो सिलेक्ट करते हैं कि मैं ब्रेन में स्पेशलाइजेशन करूं या हार्ट में स्पेशलाइजेशन करूं, या मैं पीडियाट्रिक्स में जाऊं, या मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनूं, या मैं पीडियाट्रिशियन बनूं, या तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। और वो फिर पर्टिकुलर एरिया में जाके अपना काम करते हैं, क्योंकि बाकी एरियाज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है ये एरियाज़ में स्पेशलाइज करने के लिए। इसी तरह अगर आपको डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, कंपोजिटर बनना है, साउंड एक्सपर्ट बनना है, कंपोज़र बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, तो आपको पूरी फिल्म की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है, एग्जैक्टली लाइक अ मेडिकल साइंस। और उसी के बाद आप आपका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और इसमें आप मेरे को बताइए, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करने वाली है? टेक्नोलॉजी आपको हेल्प नहीं करने वाली है। टेक्नोलॉजी आपको इज़ गिवन कि हर समय, और ऐसा भी समय आएगा कि अभी तक हम बोलते थे कि हमने नई टेक्नोलॉजी ली तो 6 साल बाद बदलेंगे, फिर आया 3 साल बाद बदलेंगे। अभी हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है, हर 6 महीने में नया सेलफोन आता है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। तो टेक्नोलॉजी तो हर वक्त आपके पास आएगी और बोलेगी कि मैं अभी ये स्वरूप में आपको नए तरीके से काम करना सिखा सकती हूँ और करने के लिए हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो फाउंडेशन है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो फाउंडेशन बनाने के लिए आपने जो रिसर्च किया है, जो मेहनत करी है, जो रियाज़ किया है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप वो सब चीज़ खरा करते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी, हर सेमेस्टर में नई टेक्नोलॉजी भी आई तो आपको डरना नहीं है। आप बाय द टाइम
आप जॉब में जाओगे और बाय द टाइम आप फिल्म मेकर बनोगे, बाय द टाइम आप जर्नलिस्ट बनोगे, तो आपको पता लगेगा कि एकदम नई टेक्नोलॉजी आई है, मेरे को इससे अडॉप्ट करना है। और क्योंकि आप ये एज में रहते हो तो आप वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट इंस्टेंटली कर लोगे, क्योंकि उसके लिए आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके दादा दादी को मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना, जूम कॉल करना आज एक बार बताने से आ जाता है, क्योंकि वो सिखाना नहीं पड़ता है। जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनको मालूम है कि हमारे पेरेंट्स का फ़ोन जब भी फ्री होता है तो वो लेके 4 क्लिक्स के अंदर में उनके कंटेंट तक पहुंच जाते हैं, तो उनको बताना नहीं पड़ता, उनको टेक्नोलॉजी सब समझ में आती है। और टेक्नोलॉजी इसी तरह कॉन्स्टेंटली बदलते रहेगी, लेकिन स्टोरी जो है वो स्टोरी अच्छी बताने के लिए आपका फाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका कंज्यूमर साइकोलॉजी जो है उस पर आपका कितना पकड़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गेमर हैं, आप गेम खेलते हैं या गेम बनाते हैं, तो आपको हर लेवल पे उसको कितना डिफ़िकल्ट करना है इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं करते हो और डायरेक्ट मार्केट में वो डालते हो तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके कंटेंट में दम होता है, उनका कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इन्फ्लुएंसर कैसा होता है? इन्फ्लुएंसर होता है कि वो अपने आसपास जो लोग रहते हैं उसको वो कंटेंट भेजता है, और वो उन लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वो और लोगों को भेजते हैं, वो चेन रिएक्शन होती है। और आपको मैं बता दूं कि हर एक आदमी यहाँ बैठा है, ये हर आदमी अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर होता है। और वो इन्फ्लुएंसर इसलिए होता है कि उनके घर में या उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सोसाइटी का है या कॉलोनी का है या आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जो भी कुछ डालोगे तो लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे या उसको डेफिनेटली लाइक करेंगे, और उनको अच्छा लगेगा तो वो आगे भेजेंगे। तो जो इन्फ्लुएंसर बनता है उसकी पावर यह है कि वो सही स्टोरी सही टाइम पे बताता है, अच्छे क्वालिटी में बताता है, वेल रिसर्च स्टोरी बताता है। इसीलिए उसकी स्टोरी फॉरवर्ड होती है और उसकी स्टोरी वायरल होती है, और उसी के कारण वो आगे चल के बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता है। और फिर लोग राह देखते हैं कि नेक्स्ट उसकी पोस्ट कब आने वाली है। और इसीलिए जब हम ये बिज़नेस में हैं जिसमें हम स्टोरी टेलिंग बिज़नेस, मैं उसको हरदम बोलता हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये देखना कि हर करियर में हर आदमी अपनी एक स्टोरी बता रहा है। और हर करियर में हर आदमी जब स्टोरी बता रहा है तो ट्रम्प साहब अपनी स्टोरी बता रहे हैं, पुतिन साहब अपनी स्टोरी बता रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी स्टोरी बता रहा है, और हर एक की स्टोरी जो है वो अपने अपने तरीके से चल रही है। और कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो या कोई एजुकेशनलिस्ट हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई लॉयर हो, हर आदमी अपने अपने ज़िंदगी की एक एक स्टोरी बता रहा है। एक गांधी जी की स्टोरी थी जो उनके जीवन की सबसे लंबी स्टोरी थी, और हर इवेंट उन्होंने जो किया वो अपने आप में एक अलग अलग स्टोरी थी, और बहुत सारी स्टोरीज मिला के उनके जीवन की लंबी स्टोरी बनी। लेकिन वो इतनी पावरफुल थी कि वो जाने के बाद 70 साल करीब होने को आए, हम अभी भी वो स्टोरीज सुनते हैं और वो स्टोरीज सराहते हैं, और उनकी लर्निंग से आज हम ज़िंदगी जीते हैं। वो आज भी अमर है स्टोरीज़ के थ्रू, बिकॉज he told very powerful stories of his life and also everything that he did. और इसीलिए आप भी जो करियर बनाओगे आपको ये समझना है, आप तो बिजनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग में आए हैं, और इसलिए आप भी वो स्टोरी इस तरीके से बताएं जो आपके ना रहने पर भी वो स्टोरी प्रचलित रहे और वो स्टोरी लाइक की जाए और आप वो स्टोरी के लिए रिमेंबर किया जाए। आई वुड ओनली से विश यू वेरी हैप्पी स्टोरी टेलिंग, and we can have a question answer soon after this. Thank you very much. बोलना चाह रहा था कि हाल ही में 20 साल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा था कि एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स के लिए भी IIT IIM जैसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो 20 साल का पुश करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको 6 महीने पहले IICT का गठन करने के लिए फॉर्मली 400 करोड़ दिए,
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हमको 10 एकड़ जगह दी फिल्म सिटी में। वहाँ पे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ अभी शुरू किए हैं। 18 जुलाई को अश्विनी वैष्णव जी ने उसका इनॉग्रेशन किया देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। और अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी IICT के लिए अप्लाई किया है। लेकिन हम लोग एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं, जॉइंट प्रोग्राम्स पे। तो मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ IICT का। तो मैं चाहूँगा कि हम आपके साथ में एक MOU करके रिलेशनशिप बिल्ड करें। और हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जो है वो इमर्जिंग इंटेलिजेंस पे हैं, म्यूज़ियम्स डेवलप करने में है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में है, कंज्यूमरिज्म पे है। हमारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में फ़ैन एंगेजमेंट एंड फ़ैन मैनेजमेंट भी है, और रीडरशिप एंगेजमेंट और व्यूअरशिप एंगेजमेंट एंड व्यूअरशिप मैनेजमेंट में भी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हम कई जगह पे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं।